Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you are doing really well. I am Sagar H. Parmar. Today, in this video, we will learn a new lesson. Class 2nd NCERT English Marigold Unit 4 Storm in the Garden. So let's start. Let us go through the lesson by reading it. Now I am going to read this lesson. You have to listen it very carefully and pay attention in this lesson. Unit 4 Storm in the Garden. Sunu Sunu the snail is playing with his friends, the ants. Suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. Sunu Sunu the snail was visiting his friends, the ants. They climbed all over him. Hee hee, hee hee, hee hee. They climbed under him. Hee hee, hee hee, hee hee. Suddenly a great white light crashed through the clouds. Sunu Sunu quickly pulled in his head, pulled in his tail, and sat very still. Outside the sky grew dark and the crows flew past. Kaka, kaka. Oh, but where were the ants? Sunu Sunu stuck out his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. Go home, Sunu Sunu, the ants cried out. Hurry, hurry, your mother will worry. Sunu Sunu went to his mother, where she sat under a stone near the well. Amma, said Sunu Sunu, there's a storm in the garden. I heard the wind blow, blow, blow. I saw tree sway, sway, sway. Sigh, 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 sigh. I saw lightning flash, flash, flash. Zack, 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 zack. I heard thunder roll, roll, roll. Gadam, gudam, gadam, gudam. I heard rain fall, fall, fall. Sita, sita, pita, pita. Sita, sita, pita, pita. I heard water drip, drip, drip. Pleep, 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 pleep. It was the biggest storm Sunu Sunu had ever been in. Oh, oh, say, say, zack, zack, gadam, gudam, sita, pita, pleep, pleep, pleep. And do you know what? Sunu Sunu didn't get wet. Do you know why? This lesson was written by Sandhya Rao. Now I am going to explain this lesson. So dear students, pay attention in it, understand it well. Let's start. Unit 4 Storm in the Garden. Storm in the Garden का मतलब होता है कि गार्डन में तूफान आया है, यानी कि तूफान है. सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द एंड्स. यहाँ पे एक स्नेल है, स्नेल यानी कि गोंगा, और इसे हम गुजराती में गोकुड़ गाय भी कहते हैं. सुनु सुनु द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स. जो सुनु सुनु है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है. वो अपने फ्रेंड्स से जो एंड्स है उनके साथ, एंड्स यानी कि चीटियाँ होती है, उसके साथ खेल रहा है. सडनली देयर इज अ स्ट्रोम. अचानक से वहाँ पे तूफान आया.
He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. वो वहाँ से तुरंत अपने मदर के पास चला गया और उसने वहाँ पे जाके जो भी उसने देखा और सुना वो सब वो कहने लगा. सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स. जो सुनु सुनु है, जो स्नेल है, वो अपने फ्रेंड्स के वहाँ गया, उनकी मुलाकात लेने गया है, जो चींटियाँ है उनके पास. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. जो चींटियाँ है वो उसके ऊपर चढ़ गई. जैसे कि आप देख सकते हैं ये चींटियाँ है वो स्नेल के ऊपर खेल रही है. क्लाइम का मतलब होता है ऊपर चढ़ना. ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम. ही वो उस तरह से ही आवाजें करने लगी और वो क्लाइम्ड अंडर हिम, वो उसके जो स्नेल के जो कवच है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो रेड कलर का है वो स्नेल का कवच होता है, उसके अंदर भी जाके खेलने लगी. सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड्स. वहाँ अचानक से एक बहुत बड़ी वाइट लाइट क्रैश हुई, धमाके से के साथ गिरने लगी. सुनु सुनु क्विकली पुल्ड हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल. जो सुनु सुनु जो स्नेल था वो क्विकली यानी कि जल्दी से, तुरंत, झटपट से वो अपना हेड और उसकी जो टेल है वो अपने कवच के अंदर छुपा दिया और वहाँ पे वो बैठ गया. आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोस फ्लू पास्ट. काका काका. वहाँ पे जो बादल थे वो बहुत डार्क हो गए थे, अंधेरा छा गया था और जो कौवे हैं वो वहाँ पे उड़ रहे थे और वो काका काका आवाज कर रहे थे. ओह बट वेयर वर द एंड्स. सुनु सुनु स्टक आउट हिज फिलर्स एंड लुक्ड फॉर देम. और वहाँ पे सुनु सुनु ने देखा कि जो एंड्स है, जो चींटियाँ है, वो कहाँ चली गई. तो उसने अपने जो कवच है उसमें से फिलर्स को निकाला और वो वहाँ पे देखने लगी. दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट. वो जो चींटियाँ थी वो फ्लावर पॉट थी उसके अंडर छुप गई थी, जो गमला था फूलों का उसके नीचे छुप गई थी. गो होम सुनु सुनु द एंड्स क्राइड आउट. जो एंड्स थी यानी कि चींटियाँ थी वो सुनु सुनु को कह रही थी कि तुम अपने घर पे चले जाओ. हरी हरी योर मदर विल वरी. तुम जल्दी जाओ अपने घर पे वरना तुम्हारी मदर को चिंता होगी, तुम्हारी अम्मा को चिंता होगी. सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल. जो सुनु सुनु है, जो स्नेल है, वो अपने अम्मा के पास चला गया. तो उसकी जो अम्मा है वो एक बहुत बड़ा पत्थर है उसके अंडर बैठी हुई थी जो कुएं के पास था. अम्मा सेड सुनु सुनु. सुनु सुनु ने अम्मा से कहा देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन. वहाँ पे जो गार्डन है वहाँ पे तूफान आया है. आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो. वहाँ पे जो हवा है वो बहुत ही तेजी से बह रही थी. हु 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 ऐसी आवाज भी आ रही थी. द ट्रीज स्वे 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 सै 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 सै. जो ट्रीज थी उसकी भी आवाज आ रही थी, जो ट्रीज थी वो भी हिल डुल रही थी. आई सो लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश. वहाँ पे बिजली भी चमक रही थी और उसका भी आवाज रहा था जैक 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 जैक. ऐसी आवाजें आ रही थी. आई हर्ड थंडर रोल 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 गडम गुडम गडम गुडम. वहाँ पे मैंने जो थंडर बिजली गिरने की आवाज़ भी सुनी और बहुत ही डरावना वो आवाज़ थी. आई हर्ड रेन फॉल 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 सिट्टा पिट्टा. मैंने यहाँ पे बारिश गिरने का आवाज़ भी सुना, सिट्टा पिट्टा. आई हर्ड वाटर ड्रीप 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 प्लिप प्लिप प्लिप. मैंने पानी की
बूंदें गिरते हुई देखी। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन। जो सुनु सुनु थी, जो स्नेल था, उसने अपने जो लाइफ के अंदर ये बहुत बड़ा तूफान देखा था। इससे पहले उसने इससे बड़ा तूफान देखा नहीं था। हु से जैक जैक, गडम गुडम, सिट्टा पिट्टा, प्लीप प्लीप प्लीप, ऐसी आवाजें उसने पहली बार ही देखी थी और सुनी थी। इसके कारण जो सुनु सुनु था, स्नेल था, वो घबरा गया था और वो डर के मारे अपने जो है वो अपने अम्मा के पास यानी कि मदर के पास चला गया और उनको जाके ये सब बात कही। एंड डू यू नो व्हाट, और क्या हुआ आपको पता है? सुनु सुनु डिडंट गेट वेट। जो सुनु सुनु है वो उस जो बारिश के अंदर वो भीगा नहीं। वो क्यों नहीं भीगा? डू यू नो व्हाई, आपको पता है वो क्यों नहीं भीगा? क्योंकि जो स्नेल होते हैं उसके पास जो कवच होता है वो जब वो डर जाते हैं तो अपना जो हेड होता है, सिर होता है और टेल होती है, पूंछ है, वो अपने कवच के अंदर छुपा लेते हैं। इसके कारण वो बच सकते हैं। और इसी कारण जो सुनु सुनु है, जो स्नेल है, जो घोंगा है, वो बारिश के अंदर भीगा नहीं और वो वापस आके अपने अम्मा के पास जो बड़ा स्टोन है यानी कि पत्थर के उसके नीचे बैठ गया और इसके कारण भी वो नहीं भीगा और उसके कवच के कारण भी जो सेल होता है उसके कारण भी जो सुनु सुनु है वो भीगा नहीं। तो बच्चों हमने इस लेसन में क्या सीखा कि जो सुनु सुनु स्नेल है वो अपने फ्रेंड्स एंड्स के साथ खेलने जाता है और वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा तूफान देखता है और वो जो सारी बात है वो अपने जो अम्मा है उसके साथ शेयर करता है या उनको सब कुछ कहता है। और वो जो क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या देखा और उसने जब पहली बार जो ये स्टॉर्म है यानी कि तूफान है अपनी लाइफ में देखा और कैसी आवाज़ें हुई, इसके बारे में उसने उसकी अम्मा को यानी कि मदर को सब कुछ बताया। तो हमने इस लेसन में स्टॉर्म इन द गार्डन में स्नेल के बारे में जाना। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम न्यू वर्ड्स बेस्ड ऑन दिस लेसन। लेट्स स्टार्ट। न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 64। ये आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 64 पे ये न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। नंबर 1, स्नेल, SNAIL, स्नेल, अ स्मॉल एनिमल विथ ए राउंड सेल, अ स्मॉल एनिमल विथ ए राउंड सेल। स्नेल यानी कि घोंगा या गोकुड़ गाय। नंबर 2, डार्क, DARK, डार्क, मीनिंग विथ लिटल और नो लिटल। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। नंबर 3, फिलर्स, FEELERS, फिलर्स, मीनिंग an animal organ that is used for tasting things. An animal organ that is used for tasting things. ये जो फिलर होता है ये एनिमल्स के जो कोई भी चीज वस्तुओं को वो ढूंढने के लिए इसका यूज करते हैं। नंबर 4, स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म, मीनिंग अ वायोलेंट वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। नंबर 5, लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग, ब्राइट फ्लैश विथ थंडर, ब्राइट फ्लैश विथ थंडर, बिजली गिरना। नंबर 6, थंडर, THUNDER, थंडर, मीनिंग क्रैशिंग नॉइज आफ्टर लाइटनिंग, क्रैशिंग नॉइज आफ्टर लाइटनिंग, बारिश के कारण गर्जना होना। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न some questions and
answers. रीडिंग इज फन, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 65। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 65 पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द क्वेश्चन। नंबर 1, हु वॉज सुनु सुनु? हु वॉज सुनु सुनु? सुनु सुनु कौन था? सुनु सुनु वॉज अ स्नेल। आंसर, सुनु सुनु वॉज अ स्नेल। जो सुनु सुनु था वो स्नेल था। नंबर 2, हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग? नंबर 2, हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग? आंसर इज सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। आंसर इज सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। सुनु सुनु किसे मिलने गया था? तो सुनु सुनु अपने फ्रेंड्स को मिलने गया था। सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। नंबर 3, वेयर वर द एंड्स हाइडिंग? नंबर 3, वेयर वर द एंड्स हाइडिंग? जो चींटियां थी वो कहाँ पे छुपी हुई थी? आंसर इज द एंड्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। आंसर इज द एंड्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। जो एंड्स थी वो फ्लावर पॉट्स यानी कि फूल के गमले के नीचे वो छुपी हुई थी। नंबर 4, डिड सुनु सुनु गेट वेट? नंबर 4, डिड सुनु सुनु गेट वेट? क्या सुनु सुनु बारिश में भीग गया? आंसर इज सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। द आंसर इज सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। बारिश के अंदर सुनु सुनु भीगा नहीं था। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मोर एक्सरसाइज। लेट्स राइट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 66। यह आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 66 पे दी गई है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। Look at the picture and complete the sentences. Pick the right word from the box. In, on, under, behind, over. Number 1, cat is jumping blank the wall. The cat is jumping blank the wall. What will be the answer? The answer is the cat is jumping over the wall. As you can see this picture, the cat is jumping over the wall. Number 2, the cat is blank the box. The cat is blank the box. What will be the answer? The answer is the cat is in the box. The cat is in the box. As you can see, the cat is in the box. Number 3, the cat is blank the door. The cat is blank the door. What will be the answer? So the right answer is behind. The cat is behind the door. The cat is behind the door, as you can see in this picture. Number 4, the cat is blank the stool. The cat is blank the stool. What will be the answer? So the right answer is under. The cat is under the stool, as you can see in this picture. Number 5, the cat is blank the suitcase. The cat is blank the suitcase. What will be the answer? So the right answer is the cat is on the suitcase. So the right answer is on, as you can see in this picture. Now I hope that you will be able to answer all the questions of this lesson. Dear students, write down this exercise in your textbook as well as in your notebook. New words 3 times and exercise 1 time in your notebook. Okay, thank you so much dear students. Have a good day. Thank you so much dear students once again. Thank you.